Good morning students. Once again we are back with one more video lecture of class 9th mathematics, chapter number 14, but obviously statistics. Dear students, I hope all of you know that this is our last video lecture for this chapter, because there were 4 topics in this chapter and we have completed already 3 of them. So this is the last video lecture of this particular chapter. In the next video lecture we'll start the new one. Okay, so learn this very properly because it is the most important topic of this chapter. Why I say most important is because this topic is there in class 10th also. So you need to learn the basics here in class 9th so that you can excel in class 10th. Right? So let's start learning this topic. The name of this topic is Measure of Central Tendency. Measures of Central Tendency. Now what is central tendency? It is a big term for your standard number 9. You will understand this in standard 11th or 12th. Okay, so I am not going in detail of this word central tendency because you are not up to that level. But you know this word measure. Measure means measurement. So just imagine that this is something, central tendency, and you want to measure it. Like if I want to measure the height, unit is centimeter, or how will I measure it? By scale. So if someone wants to measure the central tendency, what are the ways? There are 3 ways by which you can measure the central tendency. So forget about this word, just remember these words. There are 3 topics that we are going to learn in this video lecture. One is this one, mean. Second is this one, median. And third is this mode. All 3 will come in class 10th also, but with advanced level, not like this basic level. But to learn advanced level, you need to have the knowledge of basic level. That is why it is important. So 3 words are there, mean, median and mode. Let us understand them one by one. And then we'll take few sums also of exercise 14.4 so that we can understand it properly. Okay, first of all, let me explain you what is mean. Mean in simple language, it is average. Like suppose I am a student of class 9th and my 5 subject marks, 5 subject means math, science, SST, Hindi, English, out of 100 are suppose 40, 50, 60, 70 and 80. These are my marks, suppose 40, 50, 60, 70, 80 in 5 subjects out of 100. So what will be my mean? Means what will be my average? So if you want to find average, what you will do? You need to add all the numbers 40, 50, 60, 70, 80 इनका प्लस करें और divided by 5 क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं. ऐसा करेंगे then you will get the average और उसका आंसर आएगा इस केस में 60. तो एवरेज ढूंढना यानी कि जिस चीज का आपको एवरेज ढूंढना है, मीन ढूंढना है, उनको प्लस करें और डिवाइड बाय वो कितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दें तो आंसर मिल गया. तो यही काम यहां करना है. अब फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, सिंबॉलिकली काम वही करना है लेकिन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. ये रहा नंबर 1. वैसे मीन में मैंने 2 फॉर्मूलाज लिखे, दूसरे के बारे में 2 मिनट बाद बात करता हूं. फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट नंबर. ओके, फर्स्ट फॉर्मूला, लुक एट द सिंबल, आइडेंटिफाई दिस वन. दिस इज रीड एज x bar. This is bar, x bar. So x bar is a symbol of mean or average, whatever you call it. And formula, what is there in denominator? n. n means total number. जैसे मैंने अभी भी 5 सब्जेक्ट कहे थे तो 5 is n. ऊपर क्या है फॉर्मूला में? पहली बार शायद देख रहे होंगे आप ये सब. इसको बोलते हैं सिग्मा. सिग्मा मीन्स प्लस, समेशन, एडिशन. So this is the symbol sigma. What is this xi? xi means the given observations. Like जैसे मैंने कहा मेरे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स कौन से हैं? 40, 50, 60, 70, 80. तो ये सारे के सारे नंबर्स 5 के 5 मेरे xi हैं. i मतलब पहला नंबर है वो x1 है,
दूसरा x2 है, तीसरा x3 है, चौथा x4 है, पांचवा x5 है, तो उन सबको जनरल भाषा में xi कहते हैं। तो मैंने क्या किया था एवरेज ढूंढने के लिए, मैंने क्या बताया, पांचों का प्लस डिवाइडेड बाय 5। तो पांचों का प्लस, तो प्लस मतलब समेशन सिग्मा, इसको पढ़ेंगे सिग्मा। सो पांचों का प्लस मतलब सिग्मा, और xi मतलब ये सारे 5 के 5। तो ये सिंबॉलिकल तरीका है लिखने का। तो ऐसे ढूंढते हैं एवरेज। ये है फर्स्ट फॉर्मूला, सिंपल। सेकंड के बारे में बात करता हूं 2 मिनट बाद, पहले फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो आइए इस फॉर्मूला से हम ढूंढते हैं मीन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 14.4 का अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो उसमें आपको इस तरीके से दिया होगा 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। जैसे कहते मैंने मार्क्स बताया आपको 40, 50, 60, ऐसे यहाँ पे इतने सारे ऑब्जर्वेशन दिए हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन ऑब्जर्वेशंस का मीन भी ढूंढिए, मीडियन भी ढूंढिए और मोड भी ढूंढिए। ये क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको सिर्फ मीन सिखा रहा हूं, बाकी 2 टॉपिक पे बाद में जाएंगे। अभी मीन में भी 2 फॉर्मूलास हैं, उसमें से पहले फॉर्मूला का डिस्कशन कर रहे हैं, सेकंड बाकी है। तो पहले एक टॉपिक पूरा करेंगे मीन, फिर दूसरे में जाएंगे मीडियन, फिर जाएंगे मोड। ओके, तो ये सीखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में इसका मीन ढूंढना है। तो जैसे फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है सिग्मा xi अपॉन n x बार का। देयरफॉर x बार इक्वल्स 2, तो ऊपर सबका सिग्मा यानी कि प्लस करें। सो 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 अपॉन टोटल। हाउ मेनी टोटल आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल आर 10, so upon 10. Addition. What will be the addition? 2 + 3 5, 5 + 4 9, + 5 14, 15, 18, 21, 25, 28. So addition is 28 divided by 10. So final answer of this mean of this question number 1 is 2.8. 28 by 10 is 2.8. So job is done. इतना सा ही सिर्फ काम करना है। ये क्या ढूंढा हमने? मीन, वो भी पहले तरीके से। दूसरा क्या है? बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, यू विल फाइंड दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट मीन एंड मीडियन एंड मोड। सो अभी मैंने आपको मीन सिखाया, अभी इसी क्वेश्चन के लिए मीडियन एंड मोड I will teach you after few minutes, because first I want to complete this mean topic. Okay, so again I will take the same question 1 later on in this video lecture. Then I will teach you this median, and then I will teach you this mode also. So we will do these 2 topics also for the same sum, because it is asking in the question. Okay, so right now we are ending this question. इस क्वेश्चन का एक चीज मिल गई जो पूछी थी, मीन ढूंढो, वो मिल गया, डन। फाइन। अब हम सीखते हैं कि ये दूसरा फॉर्मूला कौन सा है मीन ढूंढने का, और ये कब यूज किया जाता है। अब इसके बारे में सीखते हैं। इफ यू वांट टू लर्न दिस वन, दिस सेकंड फॉर्मूला, देन यू शुड लुक एट द 5th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यू शुड रीड दिस क्वेश्चन नंबर 5। क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। फाइंड द मीन, वहां पे लिखा है फाइंड द मीन, ऑब्वियसली मीन होगा तभी तो ये सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। नीचे एक टेबल दी है, उसमें से मीन ढूंढे। तो टेबल में यहां लिख देता हूं। टेबल कुछ इस तरीके से, 2 कॉलम दी, 2 कॉलम दी है टेबल में। पहली कॉलम का नाम है सैलरी, जो रुपीस में होती है, और दूसरी कॉलम का नाम है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। इसमें कुछ एंट्रीज भी हैं, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 and 10,000।
ओके, और यहां कुछ एंट्रीज दी हैं जो कि हैं 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1, टोटल इज 60। इस टाइप की टेबल दी है क्वेश्चन में और पूछा है मीन ढूंढो। इस टेबल का मतलब क्या है? कोई एक कंपनी है जहां 3000 सैलरी जिसकी हो ऐसे 16 वर्कर्स है, 4000 हो ऐसे 12 वर्कर्स है, 5000 हो ऐसे 10 वर्कर है, 9000 सैलरी हो ऐसे 3 वर्कर है। ये मतलब है इस टेबल का। अब पूछा है मीन ढूंढो। तो अगर क्वेश्चन में टेबल दी हो और मीन पूछा हो तो सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है। तो जब आप सब कुछ लिखें, ये वीडियो लेक्चर देखें, तो इस चार्ट को जरूर ड्रॉ करें अपनी नोटबुक के अंदर। सो जब टेबल दी हो क्वेश्चन में तब आपको सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है, और जब नॉर्मल जैसे पिछले क्वेश्चन में था वो कॉमा कॉमा करके 2, 3, 5 मतलब टेबल ना दी हो, ऐसे ही रैंडम नंबर्स दिए हो, तब आपको पहला फॉर्मूला यूज करना है। टेबल दी हो तो दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस वन। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए फॉर्मूला कैसे यूज करना है, आंसर कैसे ढूंढना है, इसके बारे में अब बात करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। अब इस आंसर के लिए सीधा फॉर्मूला आपको अप्लाई करने से पहले आपको आंसर में एक न्यू टेबल बनानी है। ये तो क्वेश्चन की टेबल है, आपको आंसर में एक न्यू टेबल बनानी है, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो कैसे? पहले क्वेश्चन में तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, यहां पे पहले एक न्यू टेबल बनानी है, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन सी न्यू टेबल? तो न्यू टेबल बनानी है, उसमें आपको 3 कॉलम्स बनानी है। न्यू टेबल के अंदर 3 कॉलम्स बनानी है, लेकिन उन 3 कॉलम में से पहली 2 कॉलम तो क्वेश्चन में से ही ले लेनी। क्वेश्चन में से सिर्फ तीसरी कॉलम आपको न्यू बनानी है। ओके, ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी जब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी होगी, तो इसीलिए बना रहे हैं। तो अब ये तीसरी कॉलम कैसे बनाई जाए? तीसरी कॉलम बनाना बहुत सिंपल है। तीसरी कॉलम का नाम देना है आपको xi, fi। xi अलग चीज है, fi अलग चीज है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब बात आती है कौन है ये xi और fi। तो जो पहली कॉलम है दिस वन, उसका नाम है xi, और जो दूसरी कॉलम है उसका नाम है fi। दैट मीन्स तीसरी कॉलम में आपको सिर्फ पहली और दूसरी कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, सो फटाफट करते हैं। 16 into 3, so this will give you 48, so 48,000. 12 fours are, so again 48,000. 5 tens are, so 50,000. Next it will be 6 eights are, so 48,000. Next it is 6 sevens are, so 42,000. Next it is 8 fours are, so 32,000. Next it is 9 threes are, so 27,000. Next one it is 10,000 into 1, so 10,000. तो इस हिसाब से आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है पहली कॉलम को दूसरी कॉलम के साथ। अब इन सब का प्लस कर लेना, एडिशन। सो आई एम डूइंग एडिशन हियर। ये 3 जीरो तो ऐसे ही रहेंगे जो सब में कॉमन है, और आगे अगर बढ़े तो 8 + 8 16 + 8 24 + 2 24 + 2 26 + 2 28 + 7 35, so 5 carry forward is 3, 4 + 3 7 + 4 11 + 5 16 + 4 20 + 4 24 + 3 27 + 2 29 + 1 30. So answer is this one, 3,05,000. 3,05,000 is the answer of all the total. So ऐसे एक टेबल बनानी है, पहली कॉलम दूसरी कॉलम क्वेश्चन की टेबल में से ले लो, तीसरी कॉलम न्यू बनाओ, और वो क्या होगी? उन दोनों का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, नथिंग एल्स। ओके, अब आपको लिखना है ये फॉर्मूला। सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला, x bar equals to sigma xi fi divided by sigma fi. This is the formula. अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। न्यूमरेटर में क्या लिखा है देखिए, सिग्मा, सिग्मा मींस एडिशन,
किस चीज का एडिशन? XI FI का। तो XI FI कहीं पे था हमारे पास, टेबल में था, ये रहा XI FI। उन सब का एडिशन जो हमने ऑलरेडी कर लिया है 3,05,000। सो न्यूमरेटर पूरा आपको वैल्यू पुट करनी है सीधा टेबल पे से ही, और वो वैल्यू क्या है? 3,05,000 टेबल पे से सीधी। नीचे क्या लिखा है? सिग्मा FI। FI मतलब ये, उसका सिग्मा मतलब उसका एडिशन जो गिवन ही था क्वेश्चन में 60, तो यहां लिख देना है 60। बस अब सिर्फ ये डिवीजन करना है। So 1 0 will be cancelled out. So if I do the division, how will I get? 6 5s are 30. 0 is the remainder. 5 will come down. 0. 6 50. 6 8s are. So 48. 2 is the remainder. 2 is the remainder, right? 0 will come down. 20. 6 3s are 18. 2 is the remainder. 20. 3s are again it will come. So final answer of this division, it is 5,083.33. So this is the final answer. Nothing difficult in this. So if table is given in the question, then sum will be done like this. If table is not given in the question, then the sum will be done with first formula as I explained you 5 minutes back. तो यहाँ पहला टॉपिक पूरा होता है, जो क्या था? मीन। पहला टॉपिक पूरा होता है। सो मीन सिखा दिया। तो मीन दो टाइप के होंगे, आपको एग्जाम में भी आएंगे, तो या तो विदाउट टेबल या तो विद टेबल। सो ये चार्ट जरूर लिख लें। अगर विदाउट टेबल है तो फर्स्ट फॉर्मूला जैसे मैंने सिखाया रिपीट कर ले वीडियो को, और अगर टेबल दी है तो सेकंड फॉर्मूला कुछ इस तरीके से। ओके, सो ओनली 2 टाइप्स। सो फर्स्ट टॉपिक इज डन, मीन। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज मीडियन। सो दिस इज what we are going to discuss now, median। मैंने कहा था आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मीन मीडियन मोड तीनों पूछा है, कहा था, तो तीनों पूछा है। तो अब वापस उसी सम को लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और उसमें वापस अब हम क्या ढूंढेंगे? मीडियन ढूंढेंगे इस बार। सो मैं डेटा लिखता, डेटा था आप देखेंगे क्वेश्चन में 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 ये था डेटा। इसके लिए हमको ढूंढना है मीडियन। अब चार्ट में यहां पे जाए, मीडियन ढूंढने के लिए भी 2 फॉर्मूलास हैं, तो कब पहला यूज करना है कब दूसरा यूज करना है ये बताता हूं। इसमें तो बता दिया ना मीन में कब पहला यूज करना है कब दूसरा यूज करना है। अब यहां बताता हूं कब पहला यूज करना है कब दूसरा यूज करना है। इसमें क्वेश्चन में टेबल नहीं दी होगी, इसमें ऐसा ही क्वेश्चन होगा, टेबल वाले 10th में आएंगे, इसमें ऐसा ही क्वेश्चन होगा, ऐसा ही। तो कैसे पता चले कब फर्स्ट कब सेकंड? तो देखो यहां क्या लिखा है मैंने, ऑड एंड इवन। तो आपको गिनना है कितने थे ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर वर 10 ऑब्जर्वेशंस। सो 10 नंबर इज इवन और ऑड? इट इज इवन। सो इफ 10 इज इवन देन यू विल यूज दिस सेकंड फॉर्मूला। अगर ये कम होता, मान लो ये लास्ट में 3 ना होता, अगर ये लास्ट में 3 ना होता तो 9 हो जाते। 9 इज एन ऑड नंबर, तो हम ये फॉर्मूला से आंसर ढूंढेंगे। अगर यहाँ 3 है मतलब टोटल 10 है, तो हम सेकंड से यूज करके हम आंसर ढूंढेंगे। ओके, तो ऐसे डिसाइड किया जाता है पहले फॉर्मूला। ये तो सिर्फ फॉर्मूला डिसाइड करने की बात है कि पहला यूज करेंगे कि दूसरा। अब यूज करेंगे, जैसे यहाँ पता चला ना 10 है तो दूसरा यूज करेंगे, तो कैसे यूज करना है अब वो सीखते हैं। अभी क्या सीखा? कौन सा यूज करना है वो कैसे चेक करना है। अब कैसे यूज करना है वो सीखते हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं आंसर। तो सबसे पहले आपको मीडियन ढूंढना हो तो आपको सबसे पहला काम करना है ये जो मैं यहां लिख रहा हूं, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग फॉर्म। अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग फॉर्म, जो डेटा दिया हो उसको असेंडिंग ऑर्डर यानी कम से लेके ज्यादा, छोटे से लेके बड़ा ऐसे अरेंज करें। सो लुक एट द लीस्ट नंबर। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0। नेक्स्ट इज 1, देन नेक्स्ट इज 2, नेक्स्ट इज 3, अगेन 3, अगेन 3, अगेन 3, 4 times 3 was there, right? 1 2 3 4. Next one is 4. 2 times 4 was there. Next one was 5. Done.
इन लो तो वापस 10 हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यस, इट इज डन. सो सबसे पहला काम ये करना है, चाहे ऑड हो नंबर चाहे इवन हो, अगर ये 9 भी होते तो भी हम भले इस फॉर्मूला से आंसर ढूंढते, लेकिन अरेंज तो करते. Okay, so arranging is the must one. Okay, now after arranging, you need to write the formula. So I am writing median equals to this formula. I am writing n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation by 2. This is the formula. Okay, so I am putting the values. What is n? n is the total. How much is the total? 10. कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10. So n is the total. So I am putting the value. n by 2 means 10 by 2. So 10 by 2 observation, not 10 by 2. सिर्फ 10 by 2 नहीं, 10 by 2th observation plus 10 by 2 plus 1th observation by 2. Okay, so median equals to 10 by 2, that means 5th. So 5th observation plus 10 by 2 means 5 plus 1 6. So 6th observation by 2. So 5th observation plus 6th observation by 2. Now, which is the 5th observation? Most of students make mistake here. They don't write this word observation, observation, th. वो सिर्फ इतना लिखते हैं 5 plus 6 by 2. 5 plus 6 by 2 नहीं है. 5th observation plus 6th observation by 2. So which is 5th observation? We know 1 2 3 4 5. Which is that? 3. So 5th observation is 3 plus 6th observation. Count it. 1 2 3 4 5 6. It is again 3. So 3 by 2. So m is equals to 6 by 2. So answer of m कितना आ गया? मीडियन का आंसर 3. जॉब इज डन. सो मिस्टेक यहां करते हैं मोस्ट ऑफ, ये ऑब्जर्वेशन नहीं लिखते हैं तो सिर्फ 5 plus 6 11. 11 by 2 5.5. Incorrect. It is not 5 plus 6 by 2. It is 5th observation plus 6th observation by 2. एक और मिस्टेक करते हैं, वो क्या है? 5th observation तो देखते हैं, पता तो है कि ऑब्जर्वेशन है, लेकिन फिर यहाँ गिनते हैं क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 तो 0 आता है और 6 तो 1 आता है. So they write it 0 plus 1. When you count the observation, 5th observation or 6th or 7th or whatever, you need to count in the answer where you have arranged the data. Don't count in the question. It is unarranged data, not required. So count in the answer, not in the question. Okay, so this is done. This is what? Median. Now क्या अगर 10 नहीं और 9 होते ऑब्जर्वेशन तो क्या होता? Now let's see this one. वो सब में है नहीं. I'm teaching you extra because formula is different, so I'm teaching you extra. So suppose now I'm removing. Okay, this sum is done. Now I'm teaching you. Suppose अगर ये last वाला 3 ना होता, ये last वाला 3 ना होता तो क्या होते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 are there. Okay, so सबसे पहला काम क्या करना था? वापस वही ascending order. So क्या आता? एक 3 कम आता बीच में, ऐसे आता 0 1 2 2 3 3 3 4 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 observations. एक कम होता तो. Why I am teaching you that if in homework suppose odd number है तो क्या करेंगे? Okay, तो formula बदलेगा. This will not be there. So I am writing the new formula now. What is the new formula? This one. First one. Median equals to n plus 1 by 2th observation. वो फॉर्मूला थोड़ा लंबा था. This observation plus this observation by 2. Here it is only simple. This observation. Done. So put value of n
n is 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 plus 1 by 2. Observation. So 9 plus 1 is what? 10. 10 by 2 is 5. So m equals to fifth observation. M is not equals to 5. Fifth observation. So count which is the fifth observation. 1, 2, 3, 4, 5. So answer is 3. So m is equals to 3. Answer is done. So it nahi hota. That was a bit lengthy because formula was big. The formula is small in odd case. So here is the answer. So this is how you need to find out the answer of median. First you should arrange the data and then write the formula. Don't forget this one. How will you select the formula? You will count it. If odd, then this formula. If even, then this formula. Okay? So this was topic number 2, median. Now I am going to teach you the third topic, which is the most simple topic. That is mode. So I am teaching you that one. Again I will take the same question. वापस वही question लेते हैं. First one because first one was asking you. अब मैं original data ले लेता हूँ. 3 था ना यहाँ पे और एक और. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 observations. Okay. So this is question number 1 again. Because उसी में लिखा था कि find mean, median and mode. So अब हम ढूंढ रहे हैं mode. अब देख पा रहे हैं mode के लिए कोई formula नहीं लिखा है. What I have written? Maximum number of time repeated observation. So to find out the mode, कोई गिनती नहीं करनी है. सिर्फ एक sentence लिखना है. That's it. What is that sentence? Here. अच्छा देखो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? I think answer is 3. सबसे ज्यादा बार repeat कौन हो रहा है? 3. So I'm writing here 3 is repeating maximum number of times. Here 3 is repeated maximum number of times. Therefore, mode equals to 3. Answer is done. Right? Therefore, mode equals to 3. No tensions. So that is it. Mode is this. But here one question might come to your mind. यहाँ 3 कितनी बार आ रहा था? 4 बार आ रहा था. अगर ऐसा होता तो कि 3 4 बार है और ये 2 ये भी 4 बार होता तो वैसे कितनी बार है? 2 यहाँ एक ही बार, बट होता तो 4 बार. तो कौन आंसर होता? 2 के 3. तो आंसर दोनों होते. तो आपको यहाँ लिखना पड़ता here 2 and 3 are repeated maximum number of times. So mod equals to 2 and 3. तो दोनों mod होते. Okay, so अगर ऐसे टाई हो then both are mod. So with this we end up all 3 topics: mean, median and mode. We end up all 3 topics. So I think job is done. So with this we wind up today's session, right? Before going for the winding up, I want to give you some homework so that you can practice. Obviously, one homework is to write down this chart and to remember this one. Otherwise, this you cannot do anything. So there are 2 questions in your homework. Exercise 14.4. Question number 2 and question number 4. These are the 2 sums in your homework. When I say homework, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो सम मैंने करवाए वो नहीं करने, वो तो करने. वो कहाँ लिखने हैं? CW. वो लिखने हैं CW. और ये कहाँ लिखना है? HW. अगर आपकी दोनों बुक एक ही है, आपने पार्ट किया है तो भी ठीक, आगे भी चलेगी. No worries. If you have 2 books, then also no problem. But what I taught you in the class, in the video lecture, that is classwork. So you need to note it down in classwork, and which I am giving you over here in last, that is your homework. So you need to do this in homework. Fine. So with this we wind up this session, this topic and this chapter. When will we meet next time? We are going to take some new chapter. Till the time, thank you so much. Have a good day. Take care of yourself and your family. Do not move out.
Stay home, stay safe. Fine. Thank you so much.